ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज हमारे साथ जो सितारे हैं, वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस अ डिस्टिंग्विश्ड कपल, डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब एंड हिज वाइफ डॉक्टर नाज़िरा महमूद. Zafar Sahab is a retired bureaucrat from the Indian Civil Services. His last posting was Chief Commissioner in Delhi. He is a former officer on special duty to the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, and has played a pivotal role in the functioning of such a committee, which examined the socio-economic status of India's Muslim community. His work with the Sacha Committee led to the groundbreaking 2006 report highlighting key areas of concern and within the Muslim population in India. Beyond his bureaucratic achievements, Dr. Mahmood is also the founder of several impactful non-profit organizations like the Zakat Foundation of India, the Interfaith Coalition for Peace, and God's Grace Foundation. His organization, the Zakat Foundation, has worked tirelessly for years. Dr. Mahmood is an advocate for bridging the educational, social, and economic divides and has shared his insights globally, including at prestigious institutions like Harvard and Case Western Reserve University. He has also been an active voice of interfaith dialogue, having represented Indian Muslims at a major interfaith meeting during President George W. Bush's 2006 visit to India. We are also honored to have with us Dr. Nazira Mahmood, Dr. Zafar Mahmood's wife, founder of God's Grace Group of Schools. She is a PhD in English from AMU and was awarded Doctor of Divinity by Henry Martin Institute, Hyderabad, and proudly features in India's 100 Muslim Women list by New York-based Rising Beyond the Ceiling. Today we will be diving into their vast experiences, discussing their contributions to education, public administration, interfaith efforts, and their unwavering commitment to bringing positive change to the lives of Indian Muslims. Let's get started. डॉक्टर साहब और मैम, आप का तहे दिल से शुक्रिया, बावजूद इसके कि आप लोग वेकेशन पर हैं, बॉस्टन में हैं, एंड यू हैव स्पेयर टाइम फॉर मी. मैं उसका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से. It's our pleasure. And thank you also giving us time. मैम, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि अभी मैंने आपके प्रोफाइल में मैंने पढ़ा कि ये डॉक्टर ऑफ डिविनिटी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसके बारे में बताइए, फॉलोड बाय योर एजुकेशनल एंड देन प्रोफेशनल जर्नी. जी जरूर. So this honoris causa is a prestigious acknowledgement of the services of the receptionist. I got this from Henry Martin Institute, जो 100 years old बहुत prestigious institute है. I have got because of my services in education and because of my writing books for small children how to teach different subjects. So they honored me and given me this award. I have got this. Sounds very, very, very spiritual. It sounds very, very spiritual. बड़ी बड़ी रूहानियत किसी कैफियत होती है कि डिविनिटी वाला जो वो है. तो मैम, आपका तालीमी सफ़र, आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर कहाँ से है, और आप you got educated from AMU? Yes, मेरा ताल्लुक राजस्थान में एक मुस्लिम स्टेट थी before independence. Talk. You might have heard the name. It's बिल्कुल. जी. मेरे father, जनाब मंजूर आलम साहब, he was a leading lawyer there. So, but then he sent us for education to Aligarh. So I did my graduation and my masters from Aligarh. Then when I got married, शादी के बाद फिर मैंने डॉक्टरेट भी कर ली, क्योंकि जफर साहब की पोस्टिंग एक अलीगढ़ में भी हो गई थी. He was डिप्टी कमिश्नर अलीगढ़, तो वहाँ फिर मैंने एनरोल करा लिया था और मैंने वहाँ से पीएचडी किया. और उसके बाद फिर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ाया. और जैसे कि आपने अभी फरमाया था कि मक्का में भी पढ़ाया, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में. मैंने डॉक्टरेट इंग्लिश लिटरेचर में की थी, तो मैं यही सब्जेक्ट सब जगह पढ़ाया करती थी. अच्छा, अंग्रेजी पढ़ाती थी आप?
यस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब फिर आप बीएससी इन फिजिक्स, एमएस इन पॉलिटिकल साइंस एंड पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन यूपीएससी, तो आपका तालीमी सफ़र और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में आपका सफ़र, अगर आप मुख्तसर तौर पे हमसे शेयर करें तो। जी, मेरा वतन बहराइच है, ईस्टर्न यूपी में। जी। वहाँ हमारे वालिद साहब वकील हुआ करते थे, और वहीं से गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से 12th तक पढ़ा। उसके बाद अलीगढ़ आ गया था मैं, और वहाँ बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में किया। लेकिन उसके बाद फिर ये था कि सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए अभी भी यही पोजीशन है कि जो सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स फैचिंग है। जी। तो गर्मी की छुट्टियों में मैं गया और वालिद साहब से मैंने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, मैं बजाय एमएससी कंटिन्यू करने के और मैं एमए में दाखिला ले लेना चाहता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो उन्होंने फौरन बेचारों ने हाँ कर दी। और फिर मैं जब वापस आया अलीगढ़, और वहाँ प्रोफेसर हकी साहब हुआ करते थे, मरहूम अल्लाह मियां दोनों को जन्नत में जगह दे। जी। तो उन्होंने उनसे मैंने जाके कहा इस तरह की बात है, मैं आपके दाखिला लेना चाहता हूँ। तो उनका एक मुझे जुमला याद है कि उन्होंने कहा, अरे हम पहले ही कहते थे कि तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, कहाँ वहाँ साइंस में फंसे हुए हो। अच्छा। जी, बहरहाल इस तरह फिर मैं पॉलिटिकल साइंस में आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट पोजीशन वगैरह। और सिविल सर्विस तैयारी साथ साथ करते रहे। हमारे नासिर अली साहब जो हैं, प्रोफेसर नासिर अली साहब मेरे वो थे सुपरवाइजर। उन्होंने जी। वो उनको मेरे पर बड़ा भरोसा था कि मैं पीएचडी तो कर ही लूंगा, लेकिन मैं साथ साथ चूंकि सिविल सर्विस तैयारी भी कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने कहा था ठीक है दोनों काम तुम करो ये। खैर बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र दोनों काम हो गए कि मैं ये भी कर लिया। उसके बाद फिर जैसा अभी नाजरा ने बताया कि मेरी पोस्टिंग भी अलीगढ़ हो गई थी, तो हम दोनों अपना पीएचडी भी पूरा कर लिया बाद में वहां पर। अच्छा, तो ये पीएचडी आपने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद, यूपीएससी क्वालिफाई करने जी के जी बाद? हाँ, जी बाद में जब मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ हुई थी, तो वहाँ रिक्वायरमेंट था 2 साल का रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट था अलीगढ़ में, जी। यूजीसी के हिसाब से। अच्छा। तो अब वो चूंकि हमारी पोस्टिंग ही हो गई, वहाँ पोस्टिंग आमतौर से 3.5 साढ़े 3 साल की होती है। जी। तो हमने कहा चलो ये भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह, दोनों का काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त जबरदस्त जी जबरदस्त। जी। अच्छा सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन, आपने सच्चर कमेटी के हवाले से बहुत काम किया है, और इस कमेटी ने ये भी साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। इस पर हुकूमतों ने जो भी उनका रद्द-ए-अमल रहा वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो यानी सच्चर कमेटी के बाद जब ये रिपोर्ट आई, तो जो मुसलमान इदारे हैं या ख़ुद इंस्टीट्यूशंस हैं या मुसलमान तंजीमें हैं, उन्होंने अपना सीना पीटने के अलावा क्या पॉजिटिव फीडबैक या इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर अपना तर्ज अमल जाहिर किया? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं किया। आपके सवाल से कुछ डेस्परेशन दिख रहा है कि नहीं किया, लेकिन ये कि मेरा ख्याल ये, जो मैं चूंकि इसको बहुत क्लोजली वॉच करता रहा हूँ और पूरे मुल्क भर में हमेशा से जाता रहा हूँ अभी भी, तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि जबरदस्त चेंज आया है मुस्लिम कम्युनिटी में आफ्टर जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट। अच्छा। और जी, और ये एहसास हुआ कि अब जो कुछ करना है वो हमें ही करना है। इसलिए कि जैसे सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट हालांकि पहले यूपी गवर्नमेंट के जमाने में ही आई थी, उन्होंने अपॉइंट किया था कमेटी को, और लेकिन ये कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ तो हुआ, ये तो मैं नहीं कहूँगा नहीं हुआ, करीब 10-12-15% इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हम्म। लेकिन कम्युनिटी ने ये सोच लिया कि ये काम हमें ही करना है। तो अच्छा। बहुत बड़ी तादाद में तालीमी इदारे कायम हुए हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, बाई मुस्लिम्स आफ्टर द जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट केम टू द फोरफ्रंट। तो मैं आपको ये करूँ कि इससे बड़ा एक एहसास हुआ है। और बल्कि एक जो अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। तो ये जो तूफान आया और किसी हद तक वो तूफान अभी तक चला जा रहा है, तो उसकी वजह से इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट हैज बीन ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज दैट अच्छा। द कम्युनिटी हैज रियलाइज्ड कि हमें खुद ही करना है। और मैं आपको यहाँ ये जोड़ता चलूं
कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो हमारी कम्युनिटी उम्मत है वो इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट है, अंदरूनी तौर पर खुद कफील है। हम्म। लेकिन ये कि हम चूंकि अच्छे मुसलमान नहीं हैं, इस वजह से जो लोग ज्यादा बेहतर प्लेस्ड हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शरीयत के हिसाब से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को ज्यादा करनी पड़ेगी। जी। दैट इज द सोल्यूशन। किसी हद तक वो एहसास हो गया है, लेकिन ये उसमें और ज्यादा मजबूती लानी पड़ेगी। चलिए सर, गुड टू नो कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है, वरना जो जो ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी बज़ाहिर नज़र आती है वो यही लगता है कि सिवाय ढोल नक्कारे पीटने के कुछ अभी तक पॉजिटिव इस कौम ने किया नहीं है। मैम, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि आप जी एजुकेशनल फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हैविंग टॉट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, उमुल खुरा यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरेबिया, और मुख्तलिफ स्कूलों में भी आपने पढ़ाया है। तो एक सवाल, यानी तालीम के लिहाज से मेरे जहन में जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो वो ये जहन में आता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो तालीम का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड नहीं है? ख़ास तौर पर जो यहाँ पर तालीमी निज़ाम है वो इस तरीके से है कि भाई बच्चों को इतना बर्डन कर दो, इतना बस्तों का बोझ उनके ऊपर डाल दो कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। एक कहावत ये कही जाती है कि इन लोगों को बाबू बनने के लिए एजुकेट किया जाता है कि एक नौकरी 10 से 5 की नौकरी जो है वो करें। तो क्या आपको लगता है, आपने इतने साल एजुकेशन में गुजारे हैं, कि हमारे मुल्क में एजुकेशन नीड्स अ मेजर रिफॉर्म? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, रिफॉर्म्स तो आया है। जी। हम जब आपने सुना होगा जो एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव से आई है, उसकी वजह से काफी चेंजेस आ रही हैं, मेजर चेंजेस। जब हमने गॉड्स ग्रेस स्टेब्लिश किया था उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। तो जैसे बच्चे यहाँ यूएस में हम आते रहते थे, मैं आई, और मैं हमेशा से चाहती थी कि क्वालिटी स्कूल कायम किया जाए। जी। तो मैं बॉस्टन, न्यूयॉर्क, यहाँ के जो स्कूल्स थे, जो एलिमेंट्री स्कूल्स थे, वो मैंने विजिट किए और देखा कि वहाँ किस तरह से पढ़ाया जाता है। हम्म। तो मैंने ये मार्क किया कि आप सही कह रहे हैं कि उनका सिलेबस इतना नहीं होता है नहीं हो। जितना जी। हमारे यहाँ होता है, जी। जी। कि हर हर बुक में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और हर बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वहाँ थोड़ा, लेकिन जो कुछ वो पढ़ाते हैं, जी। तो मैंने ये मार्क किया कि वो उसको प्रैक्टिकल वे में लाते हैं सही। और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सही। थोड़ा सा है लेकिन बच्चा समझ जाता है व्हाट इज दिस अबाउट। तो ये मैंने वहाँ मार्क की। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि वो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी क्लास में, व्हेन आई विजिटेड एंड दे वर टीचिंग विक्टोरियन एरा। तो वो लेक्चर टीचर नहीं दे रही थी, बल्कि पूरे बच्चों से कहा कि वो स्केचेस बना के लाएं, उस जमाने के ड्रेसेस बना के लाएं, और टीचर ने खुद भी स्केचेस क्लासरूम में लगा रखे थे। और पूरा जो माहौल था क्लासरूम्स का वो ऐसा था कि देयर वाज नो वे कि बच्चे समझे ही नहीं कि ये सही। क्या पढ़ाया जा रहा है। सही। Secondly, the teacher and students' involvement was full because they were taking interest. The classroom atmosphere was so interesting. So, जो आप फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक रॉट सिस्टम था जी। कि भाई रट लो बगैर समझे हुए, और उसके बाद जो इम्तिहान हो उसमें आप लिख कर आ जाओ, सही। और बच्चे पास भी हो जाते थे उसमें और अच्छे नंबरों से भी आ जाते थे। लेकिन देखिए, लर्निंग और अचीविंग अ डिग्री, इसमें बहुत फर्क होता है। तो एब्सोल्युटली। लर्नर्स नहीं थे वो एब्सोल्युटली। वो डिग्रीज थी, सर्टिफिकेट्स थे। लेकिन जी। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, यू विल बी प्लीज टू नो कि हमने काफी गॉड्स ग्रेस में उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसकी वजह से चेंजेस आ रही हैं। जी। तो एक तो ये है कि जो देखिए, आपको एवरी चाइल्ड हैज ए पोटेंशियल। गॉड गॉड ने सबको कुछ ना कुछ दी है सलाहियतें। सही। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर कि वो उसको रिकॉग्नाइज करें और फिर नर्चर करें। सही। Maybe I may be very good in studies,
but the other child may be good in sports, तो वो हमें देखना है ना, अच्छा that is the recognition of the potentials। तो ये पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी उसका एक रूल है, जी ने बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किया है गॉड्स ग्रेस में, कि आप पहले देखिए कि ये बच्चा चाहता क्या है। यू सही कैन नॉट राइज द चाइल्ड, ही हैज टू डू द सब्जेक्ट्स, बट उसको देखिए वो चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। सही तो उसके लिए फिर हमने वी ब्रॉट द क्लासरूम नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज, कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जी कि भाई आप देखिए बच्चा, उसके बाद टीचर्स को खुद पता लग जाता है कि ये क्या चाहता है और क्या है। हमारे यहाँ जो बच्चों का जो फोकस रहता है, जिसमें बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है, जी वो आती है इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने में, बिकॉज इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, और मैथ्स और साइंस में, उसमें हमारे बच्चे थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। तो हम वहां भी फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से इनको उस लेवल पर लाया जाए, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ वो compete करते हैं, जी compete कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो वी आर ट्राइंग कि इतनी नॉलेज और इतना उनको मिल जाए कि वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकें। बट स्टिल यू आर एफिलिएटेड विद सम ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड्स इन इंडिया। किस किस बोर्ड से आप एफिलिएशन है? वी आर एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड। हमारा जो करिकुलम है, जी बुक्स CRT की होती हैं, जी जी लेकिन बोर्ड है वो CBSE होता है, अच्छा अच्छा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखिए मेरा जो सवालात का जो वो सिलसिला है, चूँकि आपका बैकग्राउंड है एंड यू हैव वर्कड ऑन द ग्राउंड, और इस ख़ास तौर पे कम्युनिटी के लिए आपने बहुत काम किया है, तो उसमें इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो ये कौम जिस सूरत हाल से दो चार है वो सबको मालूम है। तो आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? देखिए और भी कौमें हैं, हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि बाकी की जो कौमें हैं उनकी तरफ इतनी हॉस्टिलिटी क्यों नहीं है, सिर्फ ये इस्लाम या मुसलमानों के साथ ही इतनी ग्लोबल फिनोमिना जो है वो है। तो इसमें किसका फेल्योर है? क्या खुदा न खास्ता दीन में कोई प्रॉब्लम है, या मुसलमानों में प्रॉब्लम है, या हम उनको दुनिया को इस दीन के बारे में नहीं समझा पाए? देखिए ये एक रिसेंट फिनोमिनन है, आपने सही फरमाया है, लेकिन ये कि एक रिसेंट फिनोमिनन है। जी अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कोल्ड वॉर जब खत्म हुई, वो खत्म इस वजह से हुई कि USSR डिसइंटीग्रेट हो गई। तो उस वक्त तक ये होता था कि जितने भी इलेक्शंस वर्ल्ड में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के होते थे, तो वहाँ टॉकिंग पॉइंट कोल्ड वॉर होता था। अपने बारे में बात नहीं करते थे, इंटरनल अपने मैनेजमेंट के बारे में कोल्ड वॉर की बेसिस पे इलेक्शन हो जाया करता था। लेकिन अचानक वो मुद्दा गायब हो गया, 20-25 साल रहा, उसके बाद मुद्दा गायब हो गया अचानक जब USSR खत्म हो गया। तो ये था कि कोई टॉकिंग पॉइंट लाना है और एक कॉमन एनिमी लाना है। तो मुस्लिम्स फिटेड द बिल। तो चूंकि तो कुछ ये था कि उसी जमाने में अगर आपको याद हो तो वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की भी थियरी लाई गई वगैरह जी वगैरह। जी तो वो इत्तेफाक से हुआ ये कि उसी वक्त इंडिया में भी बाबरी मस्जिद जो है वो खत्म हो गई, और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा पोलराइजेशन वगैरह शुरू हुआ। तो वो मैच कर गया इंडिया में भी, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी, और वो अब तक चलता चला आ रहा है वर्ल्ड लेवल। अब मैं कहना मुश्किल है कौन ज्यादा खराब है, लेकिन वर्ल्ड लेवल ज्यादा खराब चल रहा है फिलहाल। जी तो अब ये तो हुई वजह कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है जानबूझ करके। लेकिन ये कि मुसलमानों का उसके अंदर कोई फर्ज नहीं है, या ये कि वो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं निभाई, ऐसा निभाई है ऐसा नहीं, नहीं निभाई। दैट इज व्हाट आई विश टू कन्वे थ्रू यू टू द पीपल, दैट कि अगर हमें ये और हम रट लेते हैं कुरान शरीफ को, और उसके बाद जुज़दान में बंद करके ऊपर रख देते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि हम उसको समझते नहीं, बच्चे को भी नहीं समझाया था शुरू से, वहां कमी है। हम मसलन ये कि पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को क्यों बनाया। आमतौर से मैं अपनी ऑडियंसेस से पूछता हूँ, खासतौर से बच्चों से,
तो वो या तो खामोश रहते हैं या ये कहते हैं हाँ कि ये इबादत करने के लिए। तो इबादत करने के लिए तो ठीक है, लेकिन कौन सी इबादत है, ये सूरह हूद की 11.7 में क्लैरिफाई कर दिया अल्लाह मियाँ ने, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान लें कि तुम में से कौन हमने जो तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं उसका इस्तेमाल करके दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा हुआ है, किस कदर इनमा के साथ। ये इम्तिहान है, जो वो पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। सेकेंडली, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बताए नहीं जाते, इवन जुमे के खुतबे में नहीं बताए जाते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेकेंड जो है वो सूरह हशर की आयत है, वो 59.7, वहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ समाज में दौलत है, जो मैंने अभी आपसे शुरू में अर्ज किया था कि वो कम्युनिटी खुद कफील है, सेल्फ सफिशिएंट है इंटरनली, कि जो कुछ समाज में दौलत है वो कुछ लोगों के हाथ में रुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इट शुड कीप ऑन सर्कुलेटिंग। 59.7 में बिल्कुल क्लियर। अब इनको आप जोड़ें, जो और भी कुछ बुनियादी बातें हैं, मसलन ये कि प्रोफेसर फतेह उस्मान साहब अल अज़हर यूनिवर्सिटी के थे, अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे, बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक अवेकनिंग कायम किया था। तो उनकी बहुत सी किताबें पब्लिकेशन से, एक किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कुरान, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम इतने अच्छे अल्लाह के बंदे हो कि 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते हो, इस वजह से तुम बहुत अच्छे बंदे हो गए उनके, तो तुम्हारी जरूरी नहीं कि बात सही हो, क्योंकि तुम्हारी नमाजों की अहमियत इससे तय होती है कि 2 नमाजों के बीच में जब तुम मस्जिद से बाहर होते हो तो क्या करते हो। अल्लाह ताला इससे, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि हमने उनको समझा ही नहीं, और समझा नहीं, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। देयर लाइज द प्रॉब्लम। सर, तो ये तो इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है ना। देखिए, इसमें जिनके जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, जो अजमी दुनिया है, जिसके पास लैंग्वेज का बैरियर है, टोटल, चाहे कुरान हो या ज़्यादातर टेक्स्ट हो, दीनी टेक्स्ट हो, वो सब अरबिक लैंग्वेज में है। तो उसमें इनफरादी तौर के ऊपर तो ये जिम्मेदारी उनको नहीं डाली जा सकती। अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, हमें तो शुरू से इस दुनिया के मुताल्लिक ये बताया कि अंग्रेजी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिनके पास दीन को सिखाने की या उसको प्रोपेगेट करने की, सही पर्सपेक्टिव में पेश करने की जिम्मेदारी थी, तो ये तो वहाँ के ऊपर फेलियर है। इट डजंट सीम टू बी फिक्स्ड इवन नाउ। अब भी ऐसे ही हो रहा है कि वो बड़े घिंडो अपने उसमें रह रहे हैं और उसी पे काम चल रहा है। नहीं, मगर जिम्मेदारी किसकी है, मेरी और आपकी तो है ना। तो हम इसमें होता ही है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्यों, बल्कि उसको समझने की जरूरत ये है कि जब रूह जो है जिस्म से अलग हो जाती है, उसके बाद जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इंडिविजुअल है। तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि साहब हमारे मुजीब साहब ने हमारा साथ नहीं दिया, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरे हाथ पर बोलेंगे नहीं ये कर सकता था। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है उसको निभाने के लिए अभी से हमें करना है कि हम अपना इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। जो कुछ रिसोर्सफुलनेस उसने हमको दे रखी है, तो यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा सूरह बकरा की आयत नंबर 219 पे, वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे आपके साथी लोग पूछ रहे हैं कि अल्लाह की राह में कितना करना है, तो आप उनसे कह दीजिए कि हमने उनको जो कुछ रिसोर्सेज दिए हैं उसमें से अपने लिए, अपनी न्यूक्लियर फैमिली के लिए, अपने ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनके लिए जो वाजिब जरूरत है उतना रोक करके बाकी सब करना है। दिस इज क्वांटिफिकेशन ऑफ सदका। ये खाली टाइम उसका पैसे का नहीं है, ये टाइम, रिसोर्सेज, एसेट्स, इनकम एंड लव। ये एक हमने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में एक मफरूजा बना रखा है, हाइपोथेसिस ट्रेल 33, TRAIL-33, टाइम, रिसोर्सेज, एसेट्स, इनकम एंड लव। ये 5 चीजें हर इंसान को तकरीबन किसी न किसी मकदार में मिली हुई हैं। इनका 33%, 1/3 अपने ऊपर खर्च नहीं करे, अपनी न्यूक्लियर फैमिली पे खर्च नहीं करे, दूसरे पे करे। वक्त भी इसके अंदर सबसे बड़ा आ गया, और जमीन जायदाद आ गई, सब चीज आ गई इसके अंदर। अगर हम उसको समझ करके और जरा से भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, we have got a solution of our problems in India as well as anywhere in the world. Let's hope for the best, sir. Sounds very optimistic. और नहीं, हम जो करके दिखा रहे हैं आपको, जी, जमीन सतह के ऊपर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में 26-27 साल हो गए
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के जरिए ये सब काम, एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, more than 200 of our boys and girls have already joined the civil services, and delimitation का काम करके और एम्पावरमेंट जो है लेजिस्लेटिव एम्पावरमेंट वो भी बढ़ाया जा रहा है। तो सब चीज पॉसिबल है, हम करके आपको बता रहे हैं, लेकिन मोर पीपल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन इन। जी जी। अच्छा मैम, आपका आपका क्या नज़रिया है कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? क्या चीज़ होना चाहिए अपने नज़रिए में और अपने सिलेबस में? देखिए, दिस इज एन एज ऑफ एक्सीलेंस, जी जहाँ अगर हम सिर्फ हमारा मकसद ये हो कि 33% से ही हम एग्जाम किसी तरह पास कर लें, तो वी डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। तो पहली चीज जो हमारे बच्चे हैं उनको अपना जो भी वो कर रहे हैं उसमें एक्सेलेंस लाना होगा। और दूसरी चीज जो मैं फील करती हूँ कि क्या रिफॉर्म्स जैसे आपने फरमाया आना चाहिए, वो है कम्युनिकेटिव स्किल्स। उसमें भी बच्चे काफी पीछे हैं। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, जी, बिल्कुल बहुत सही जरूरी। बात है। जी जी और उनको जैसे जो दूसरे बच्चे हैं उनको घर से सपोर्ट मिलती है, हमारे बच्चों को इतनी नहीं मिलती, मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती। जी उसके लिए हमने इस पे फोकस किया है जी और हम उन बच्चों को एक वी आर ट्रेनिंग देम फॉर स्टेज कॉन्फिडेंस, कि आप स्टेज पे खड़े होइए और जी वहां आप बोलिए, कोई भी टॉपिक दिया जाए वहां डिस्कशन होते हैं और डिबेट्स होती हैं और फिर इंटरैक्टिव सेशन होता है। तो जी। उससे बच्चे में कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप होती हैं कॉन्फिडेंस और आता है। कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि वी व्हाट वी हैव मार्क्ड इन माय जर्नी इन दिस फील्ड दैट जो हमारे बच्चे हैं स्पेशली मुस्लिम बच्चे, जी they might be knowing their subject very well, जी। but they cannot एक्सप्रेशन they नहीं है। can express it, जी और वो जो स्किल है they जी are lacking in that skill। तो वहां पे हमें काम करना है, and by the grace of God we are working and I have marked substantial improvement in that। क्योंकि रोजाना आप बच्चे से कहेंगे तुम बात बोलो, जोर जोर से बोलो, तो वो तो फिर ट्रेंड हो ही जाएगा। सही बात, सही बात। और दूसरी फिर वो भी है कि जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं जी वो बिल्कुल डीप जाकर लर्न करिए। सती नॉलेज से आप कहीं भी आपका भला नहीं हो पाएगा। सही। दूसरी एक चीज और है कि नाउ स्कूल्स स्कूल्स आर नॉट द ओनली सीट्स ऑफ लर्निंग, जी बिकॉज स्टूडेंट दे आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो। या लाइक इंटरनेट एंड अदर थिंग्स दे आर देयर, वहां से भी तो उन्हें नॉलेज मिल रही है ना। जी तो उसमें भी टीचर्स को हम ट्रेन करते रहते हैं, उनकी वर्कशॉप करवाते हैं ताकि वो उनको भी पता लगे कि मॉडर्न एजुकेशन क्या है और बच्चों को क्या जरूरत है कि वो compete कर सके। तो जी इस पे काफी हम लोग फोकस कर रहे हैं और शायद अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो यही सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि बच्चों को जी। ये सब आ सही जाता है, तो फिर सही उनको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यू फाउंडेड इंटरफेथ कोalition फॉर पीस एंड देयर इज नो पीस अराउंड अस। तो आपको लगता है कि इंटरफेथ डायलॉग इस वक्त ज़रूरी है और इट कैन डिलीवर सम पॉजिटिव रिजल्ट्स? जी जी, बिल्कुल जरूरी है। और ये हमारा लेकिन लेकिन सर, हमारी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब इतनी नेगेटिविटी है कि हर चीज को जो है वो निगेट कर दिया जाता है। तो किस जगह के ऊपर गुंजाइश है कि आप अपनी बात खड़े होकर और महज़्ज़ब तरीके से कहें और लोग सुने? किस प्लेटफॉर्म पे कहें? हर जगह गुंजाइश है। देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया के जमाने में जी कोई आपको कुछ रोकने नहीं आ रहा है। अब हम आप जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जी इसको बहुत से लोग सुनेंगे। यू टुक द इनिशिएटिव, जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट। तो उस जी तरह से ये जमाना ही ऐसा है कि इसके अंदर किसी भी तरह से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और जो आगे बढ़ना चाहेगा, जिस तरह से रोज नए नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, और अब चैट जीपीटी आ गया, और चैट जीपीटी में भी अब ये भी आ गया कि अब आप जो कुछ टेक्स्ट में लिखे हैं वो उसका वीडियो बन जाएगा, आप बटन दबा देंगे तो वगैरह वगैरह। तो देयर इज नो लिमिट टू दैट, द लिमिट इज ओनली विद इन अस। हम्म हमें हमें हमारे अंदर
ये आना चाहिए, वही जो मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि हमें आगे बढ़ करके मिल्लत के लिए काम करना है, अपने रिसोर्सफुलनेस का, अपने वक्त का इस्तेमाल करना है। जी बाकी जो आप फेथ की बात कर रहे थे ना, तो जी वो तो हमारा दीनी मैंडेट भी है। ये जी बहुत कम लोग समझते हैं। वो दीनी मैंडेट इस तरह से, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि पूरा जो स्कीम है कुरान में बताई गई है, दुनिया किस तरह से बनी वगैरह ये वो, तो जी जैसे जो सबसे सबसे पहले इंसानियत बनाई गई, उसके पहले ही जो है वो आगे आने वाली जितनी किताबें थी जो पैगंबरों को मिलने वाली थी, वो सारी एक जगह लौहल महफूज में रख दी गई थी। जी और जी वहां से निकाल निकाल करके देते रहे, और जो जो पैगंबर लोग आगे आते रहे उनको किताबें मिलती रही, उनकी कम्युनिटीज बनती गई, बाद में कम्युनिटीज बन गई। जी तो सोच तो एक ही है, जी लेकिन ये कि हम चूंकि उसको अच्छी तरह से हम खुद नहीं समझते, हम अपने कुब्जे में अपने को हमने बंद कर रखा है। जबकि हमारा दीन कह रहा है, सूरह बकरा की 2.285 है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसुली, डू जी नॉट डिफरेंशिएट अमंग द मैसेंजर्स, जी डू नॉट डिफरेंशिएट अमंग द बुक्स। तो वो इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझ करके, जी ये दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैसेज ऑफ इंटरफेथ डायलॉग एंड रीचिंग आउट। वो जी ये जो आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया, ये जी तो ये इसमें हम लोगों को बहुत कम मालूम है, क्योंकि जो जुमे का खुतबा है ना, जी वो 1400 साल पुरानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। और ये जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जमाना तो अब आया है, एक सदी भी नहीं हुई, जी लेकिन वो 1400 सदियों से चल रहा है, लेकिन उसका हमने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया अभी हम्म भी इसका उसमें। तो इस वजह से आपको जान के खुशी होगी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं अंडर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसमें एक है असाबत सुफ़ा इंस्टीट्यूट फॉर इमाम्स एंड खतीब्स। ओके तो जो जुमे के खुतबे जो लोग देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करना कि क्या चीज बोलनी है, क्या चीज नहीं बोलनी, कितनी तैयारी करके बोलना है वगैरह वगैरह, पॉइंट साथ में होने चाहिए तब बोलो, और ऐसी चीज बोलो जिससे दीनी और दुनियावी दोनों तरह से मिल्लत का भला हो वगैरह वगैरह। तो ये काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं मतलब एक छोटी सी सिफारिश आपसे ये मतलब इल्तिजा ये कर रहा हूँ कि अभी मैम ने ये कहा कि पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और ये चीज़ हम काफ़ी ज़माने से महसूस कर रहे हैं। और बिलखुसूस मैं आपसे जिक्र करूँगा जो टेलीविज़न डिबेट्स होती हैं, तो उनमें जाहिर है कि वो तो जो चैनल्स हैं वो तो बड़ी सेलेक्टेड अपने हिसाब से लोगों को बुलाते हैं, सो कॉल्ड क्या कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी। तो दे डोंट डिलीवर, बल्कि वो नुकसान करते हैं। लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनके ऊपर भी कोई बहुत सब्सटेंशियल काम तो हमारे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। कोई भी एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए, सारे इदारे जो हैं उनके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया है। कोई एजुकेटेड पर्सपेक्टिव पेश नहीं किया जा रहा। इतने बड़े बड़े जो मसले आए, 3 तलाक का मसला आया, तो उसमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जो थे वो पेश किए गए, लेकिन जो इज्तिमाई एक एफर्ट होना चाहिए, यानी आप समझ लीजिए कि वो कौन सा है, दारुल उलूम ने अलग पर्सपेक्टिव पेश किया, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने अलग पर्सपेक्टिव पेश किया। कोई कलेक्टिव एफर्ट, एक पढ़ा लिखा सा, उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कलेक्टिव एफर्ट कोई काम नहीं हुआ। इवन जो आपने जो दो नाम लिए, उसमें से आपने एक नाम लिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज ए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म, is representing the whole of India, where different shades of opinion, different sects, etc. उन सब को जाहिर है उनके आपस में बातचीत होती रहती है। अब जी जैसे हम तीन लोगों की इस वक्त बातचीत हो रही, वैसे वो बाकायदा सिस्टमेटिकली मुस्तकिल तौर के ऊपर पीरियडिकली पूरे मुल्क के उलमा किराम जमा होकर मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। अभी वक्फ बिल के ताल्लुक से मैंने भी देखा, उनके दो इज्तिमा तो मैंने अटेंड किए, जी बहुत बड़ी बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से जो है तमाम शेड्स ऑफ ओपिनियन के और स्पिरिचुअलिटी शेड्स के लोग जमा, और वो मिल करके आपस में डिस्कशन करके उसके बाद फिर अपनी बात पेश कर रहे हैं हुकूमत के सामने। जी तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कि नहीं। द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू गेट कनेक्टेड मोर एंड मोर with the इंटेंसली। masses, with the masses,
जो यस, विद द मासेस भी। जी जी वही मैं आपको अभी अर्ज कर रहा हूँ। अभी आप अगर थोड़ा सा एक पिछले 2-3 महीने का भी देखें तो ये जो वक्फिल आया हुआ है उसके ताल्लुक से मासेस को कनेक्ट करते हुए इतने जबरदस्त प्रोग्राम्स हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इंडिया में। तो देखिए जाहिर है सोशल उस मीडिया पे नहीं नजर आ रहा सर। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मीडिया भी बहुत है, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये कि चूंकि मैं आपको अर्ज करूँ, आपकी बात अपनी जगह सही है, वो ये है कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है ना, वो इतना जखीम मुल्क है जी कि वहां पर जो नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, परसेंटेज फिर भी बहुत छोटी रह जाती है। तो जी लिहाजा और ज्यादा लोगों को बड़ी तादाद में उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बात वहीं आती है घूम करके 1233 के ऊपर, टाइम, रिसोर्सेज, एसेट्स, इनकम एंड लव। अपना जो मिला हुआ है उसको सारा अपने पास मत रखो, दूसरों के ऊपर भी खर्च करो। सही सही सही। अच्छा चलिए सर, कुछ हल्की फुल्की सी बातें हम करते हैं। आपने किताबें लिखी हैं और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ताजमहल से स्पिरिचुअल मैसेज, जहान मकाफात, ग्लिम्पसेस ऑफ इकबाल्स पोइट्री, पैकार ज़िंदगी उर्दू में है, और निशात सानिया की जस्तजू, ये आपकी प्रोमिनेंट किताबें हैं। तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ताजमहल स्पिरिचुअल मैसेज, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि मेरे जहन में तो वही शेर आता है कि एक शहनशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल, हम मुफलिसों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो जी और इसी से रिलेटेड ये भी चीज़ जहन में आती है कि मुगलों ने सिवाय इमारतें बनाने की यूनिवर्सिटीज़ तो बनवाई नहीं। खैर बहरहाल, मैं आपसे किताब के सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ ताजमहल स्पिरिचुअल मैसेज? मैं देखिए, हमारे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है 27 साल से चल रहा है। उसका मोटो है कुरान करीम की आयत, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, हम्म। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिज कॉज। तो वो चीज़ हम मुस्तकिल होते हुए देख रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ने एक मदद मेरी ये की कि मेरी पोस्टिंग कर दी आगरा में। अच्छा मैं आगरा का कमिश्नर था अच्छा 2003 और 4 में। तो जाहिर है वहां मैं था तो तरह तरह से लोग, हमारे रिश्तेदार भी, फैमिली के भी और बाकी लोग आते थे। तो हम भी ज्यादा गए ताजमहल। तो अंदाजा ये हुआ कि ताजमहल जो है वो तो आमतौर से लोग समझते हैं कि वो खूबसूरती की निशानी है और मोहब्बत की निशानी मकबरा है। है। हाँ, लेकिन ये कि ताजमहल जो है वो अल्लाह के पैगाम को इंसानियत तक ले जाने का जरिया भी है, ये बहुत कम एहसास हुआ लोगों को। तो मैंने फिर क्या किया, हमारे जो स्टाफ में जो मुस्लिम इंस्पेक्टर्स वगैरह थे उनको भेजा वहाँ। उनके जाके सब नोट करके लाओ, कहाँ कहाँ कौन कौन सी आयत लिखी, सूरत ये वो। हम्म। उसके बाद मैंने 10 साल तक उस पर खुद रिसर्च की। अच्छा। हाँ हाँ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बहुत ही निचोड़ करके ये एक चीज निकली, ताजमहल स्पिरिचुअल मैसेज। इसमें बहुत ही आप देखेंगे तो बड़े फोकस फोटोग्राफ हर पेज की, कॉफी टेबल बुक है ताकि हम्म। रखी रहे और कहीं से भी कोई भी बच्चा भी खोल करके देखे तो उसको एक तस्वीर बड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी ताजमहल के किसी एक कैलीग्राफी की। जी। और वहां पर कुरान का मैसेज और उसका तर्जुमा अंग्रेजी में भी वो अच्छा, मिल जाएगा। जी जी। वो तो जो ये आयत वहां पे लिखी हुई हैं उस ताजमहल के ऊपर, जो आयत बहुत ज्यादा लिखी हैं। अब जाहिर है प्रॉफिटेबल बुक में तो थोड़ी सी ही चीजें आएंगी, हम्म। तो उसके और भी वॉल्यूम्स आने चाहिए आगे चल के, और लोग भी इसमें हिस्सा लें तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि ये चीज अल्लाह ताला ने जहन में डाली, तो लिहाजा ये हमने ताजमहल से स्पिरिचुअल मैसेज उसको बाकायदा जगह जगह उसको हमने रिलीज किया इंडिया में, और हम्म। इंडिया के बाहर भी, न्यूयॉर्क में भी किया था रिलीज। उसमें हमारे इंडियन कॉन्सुलेट जनरल के लोग भी आए हुए थे इसके अंदर वगैरह अच्छा। वगैरह। तो हाँ, तो बस ये है कि बात पहुंचे आगे तक। तो उसमें जो जो तस्वीर हैं वो हमारे बेटे, बड़े बेटे का यहीं पर है, काशिफ नाम है। तो जी। वो आए हुए थे आगरा, उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो वो दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ आप इस काम में। और वहां जा करके उन्होंने सारी फोटोग्राफी की, तो वो तस्वीरें फोटो वो उन्हीं की खींची हुई तस्वीरें के अंदर। तो बहरहाल ये कि वो एक मैसेज का जरिया बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बड़ी तादाद में अब तक उसको ऑनलाइन भी मौजूद है, अच्छा क्लिक करके पढ़ा अच्छा जा सकता है जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर, चलते चलते मैं आप दोनों से ये सवाल पूछूंगा कि आप दोनों एलिगेरियंस हैं, और जाहिर है कि अलीगढ़ एलिगेरियंस के साथ रहता है उम्र उम्र भर।
तो कुछ एनेक्डोट्स आप की ज़िंदगी के कुछ मज़ेदार वाक़यात, मैम आपसे स्टार्ट करूँगा। अगर आपने तो खासा वक्त वहाँ पे गुजारा है, तो वहाँ कौन से हॉल में आप रहती थी? अब्दुल्ला में रहती थी या वहाँ? जी। मैं पहले अब्दुल्ला में रही, जी। उसके बाद थोड़े दिन के लिए एसएन हॉल में भी रही थी, सरोजनी नायडू हॉल में। जी, अच्छा। लेकिन ज्यादा टाइम मेरा अब्दुल्ला में गुजरा था। जी अच्छा। अच्छा। जी। तो कुछ यादें? वैसे यादें तो बहुत है, और बड़ा अच्छा सा वहाँ माहौल था। हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था लड़कियों के साथ। हम जी। पढ़ते भी थे, लेकिन हम अपना अब क्या कहूँ मैं, अच्छी मतलब खुशगवार एक माहौल में जिंदगी गुजारते थे। वहाँ बड़ा खुशगवार सा था वहाँ। तो जी। वहाँ का एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ रहा है। मेरी जो मुझे जब अब्दुल्ला हॉल में हमारा मुझे ग्रेजुएशन में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो मुझे सुल्तानिया हॉस्टल मिला था। अच्छा। और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों बहनों का साथ ही एडमिशन हुआ, तो उन्हें न्यू हॉल मिला था। न्यू हॉल थोड़ा सा मॉडर्न हॉस्टल था। अच्छा। यार, सुल्तानिया में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वो बड़ा बड़े बड़े पेड़ और ये वो सब थे, अंधेरा भी रहता था। तो मैं अच्छा। चाहती थी कि मैं उन्हीं के साथ चली जाऊं। बड़ी जो मेरी बहन है, उन्हीं के कमरे में मुझे भी मिल जाए और कहीं जगह नहीं हॉस्टल, जी। लेकिन वो अंडर ग्रेड्स के लिए नहीं था। जी। खैर एनी, तो हम कोशिश करते रहे। तो हमारी वार्डन थी, प्रोवोस्ट थी या वार्डन थी, रशीदा आपा। जी। मैं उनके पास अपनी कुछ सहेलियों के साथ गई और कहा कि रशीदा आपा, हमारा अगले महीने इम्तिहान है, और मेरी ज्यादातर जो दोस्तें हैं जिनके साथ मैं पढ़ती हूँ वो जी। न्यू हॉल में है, तो मुझे वहीं कर दें आप। तो खैर वो बहुत देर से पहले तो मना कर दिया, नहीं नहीं जहाँ हो वहीं पढ़ो ये वो। खैर फिर जब हमने ज्यादा कहा, हमारी फ्रेंड्स ने भी इल्तिजा की, तो उनका अच्छा ठीक है, और मैं तुम्हें अलॉट कर देती हूँ न्यू हॉल। तो हम बहुत खुश हुए, शुक्रिया अदा किया। जब मैं चलने लगी तो रशीदा आपा मुझसे बोली, सुनो नाजरा, जब तुम्हारा रिजल्ट आए ना, तो मार्कशीट मुझे भी दिखा देना, क्योंकि तुमने हॉल उसी वो हॉस्टल उसी लिए लिया। सही बात नंबर अच्छे आए। वो मुझे आज तक याद है ये बात। जी। जी। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई आपकी वहां जाकर या? जी। जी। तो डॉक्टर चलिए। साहब, आपका तो खैर बड़ा जरखेज दौर रहा होगा अलीगढ़ में। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी का, और बड़े मेरे ख्याल से शायद शहरियार साहब वगैरह आपके सीनियर रहे होंगे, शहरियार साहब होंगे उस ज़माने में। तो आपके पास क्या है ज़खीरा कुछ अपनी यादों का? कहाँ कौन से हॉल में रहते थे आप? मैं मैकडॉनल्ड हॉस्टल में था, आफ्ताब हॉल में। अच्छा। और आफ्ताब हॉल का मैं वो भी था, कल्चरल वाइस प्रेसिडेंट अच्छा। कल्चरल सोसाइटी का। अच्छा। और पूरे जितने भी हॉल्स ऑफ रेजिडेंस थे, सबके सेक्रेटरीज और वाइस प्रेसिडेंट्स आपस में एक तंजीम भी बना रखी थी। उसका एक ग्रुप फोटोग्राफ भी है, हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है अभी भी। हम्म। और शेर शायरी की बात आप कर रहे हैं, तो यस, बैतबाजी में मैं काफी पार्टिसिपेट करता था। वो बड़ा मजा आता था उस जमाने में। डिबेट्स वगैरह में भी करता था। जी। तो और ये इन सब से बढ़ के ये है कि हालांकि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का नहीं था, लेकिन मुझे उस जमाने में 1972-73 जमाने में रीगर मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन का एडिटर भी अपॉइंट किया गया था। अच्छा। अच्छा। जी जी। जी। और हम दोनों जो साथ बैठे आपको दिख रहे हैं, वो भी इसी का नतीजा है, ओहो। क्योंकि मैं एडिटर था और नाजरा ज्वाइंट एडिटर थी। अच्छा। अच्छा। जी अच्छा। जी। ये माशाल्लाह, तुम्हारा, तो मतलब एक एक हाँ। राजेंद्र कुमार और साधना की फिल्म जो है वो इधर भी बनी। तो नो लुकिंग बैक सिंस देन। तो हमने अभी माशाल्लाह। ब्रॉट आउट टुगेदर स्पेशल इशू ऑफ द अलीगढ़ मैगजीन ऑन 25 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अच्छा। काफी अच्छा। लोगों से हमने पूरे यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर भी जाकर के काफी लोगों से आर्टिकल्स वगैरह जमा किए और खुद भी लिखे वगैरह जी। वगैरह। तो वो जी। अभी तक मौजूद है। हम हमारे पास भी उसकी कॉपी है, और आपको भी कोई मौका लगे तो देखिएगा। जरूर। यहाँ मैं थोड़ा कहता चलूँ कि अगली जनरेशन को जोड़ना बड़ा जरूरी है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, जो है वो ये हम तो कर रहे हैं, जो भी अल्लाह ने फरमाया है कि जो दूसरों से कहो वो पहले खुद करो। तो 3 बेटे हैं हमारे। मैंने आपको अभी काशी के बारे में बताया, और दूसरे 7 साहब हैं, वो न्यूयॉर्क में हैं, वो भी वेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और तीसरे साहब जो है ना, वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं, जी। हार्वर्ड से ही। और वो
नाजरा का साथ दे रहे हैं ताकि जो उनके इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं वो और ज्यादा परवान चढ़े। उसमें उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी भी बना रखी है, समर स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह करके। तो अगली जनरेशन को आगे बढ़ा करके और उसको बैटन को हैंड ओवर कर देना सिस्टमेटिकली, ये भी बड़ी जरूरी चीज है। और इससे पूरी मिल्लत के ऊपर भी और उसकी मिल्लत के सफर के ऊपर भी बड़ा मुस्बत असर पड़ता है। बहुत यकीनी तौर के ऊपर सर। ये कि जो आपने बीच में प्रोग्राम में कहा भी कि ज़रा डेस्परेशन नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा जनरलाइज्ड सी फीलिंग है इस वक्त लोगों के जहनों में। लेकिन आप जैसे लोगों से मिलकर उनसे बात करके ये एक ऑप्टिमिज्म, एक एनकरेजमेंट ये मिलता है कि अभी भी कुछ ऐसा किया जा सकता है और ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। आप यू आर एन एग्जाम्पल बिफोर अस, और आपके लिए ये दुआ है कि आप मज़ीद अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और मिशंस हैं वो उसमें कामयाबी हासिल करें और हम सब की रहनुमाई करते रहें। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सम टाइम इंशाल्लाह। Jazakallah. Thank you very much. We enjoyed talking to you. Yes, Same thank here, you. sir. Same here. Same here. Thank you, and Khuda Hafiz. Khuda Khuda Hafiz. Hafiz.